impact of technology and structural change on rural communities and some policy options. Basically Pakistan's rural demographic has largely been employed in agriculture, with the only change over the decade being in the efficiency, production and development of the sector. Gradually, post-independence, two major issues were realized: that despite a majority of Pakistan's population being engaged in agriculture sector, there was the low inefficient production of crops, low quantity and quality of food production, and stagnancy in the way resources and inputs were used in that sector. For overall development in terms of GDP, gross domestic product, a competitive national economy and a stable, safe growth rate that provides jobs, income, health and education to all. It was necessary to create an industry and service sector that could somehow effectively absorb the excess human capital that is called out from families, human capital and labor from the agriculture sector, where employment was extensive, and raise its production, investment and income rates. Impact of modern technology on rural areas with new input of production and resources like a hybrid variety of seeds, new cropping techniques and technologies, irrigation and fertilizer facilities. We have boosted our agriculture output. Farmers are progressively adopting tunnel farming technology. All of you know about the tunnel technology. Tunnel farming basically more profitability against conventional strategy for cultivating, enhance employment of rural population and also guarantee food security. Basically tunnel farming में आउट सीजन क्रॉप्स को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. तो जब आउट सीजन क्रॉप्स आप अवेलेबल करवा दें तो फूड सिक्योरिटी भी हो जाती है उस इलाके में, और फिर टनल फार्मिंग में ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट की, लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो वो जो लोकल एरियाज़ के अपना एम्प्लॉयमेंट भी इन्हांस होती है उसमें, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी ड्यू टू ऑफ सीजन क्रॉप्स की प्रोडक्शन की जाती है. तो उसमें जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग मैकेनिज्म है, ट्रेडिशनल फार्मिंग मैकेनिज्म है, उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती है. तो टनल फार्मिंग प्रोड्यूसर कैन हैव मोर मैनर्स पर सेक्शन ऑफ लैंड बाय यूटिलाइजिंग हाइब्रिड सीड्स. अब उसमें सिर्फ टनल फार्मिंग में फार्मिंग टेक्निक चेंज नहीं है, फार्मिंग टेक्निक नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है, उसमें सीड्स भी हाइब्रिड यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स भी उसमें न्यू टेक्नोलॉजी के तहत यूज़ होती हैं, और बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र उसमें दिया जाता है जिससे आपके जो एक्सपेंस है वो भी बचते हैं. एंड इरिगेशन एंड वाटरिंग सिस्टम जो है वो भी न्यू टेक्नोलॉजी के तहत टनल फार्मिंग में यूज़ किया जाता है. Accordingly, plants get a smooth flow of supplements and produce a high quality of product. फिर tunnel technology had made room for conveying radical change in the field of agriculture to the agriculture area, empowering the producer to plant off-season crops and enhance the financial condition of the farmer. तो ये थोड़ी जगह पे भी जहाँ पे हम लैंड रिफॉर्म की बात करते थे, लैंड साइज की बात करते थे, तो टनल फार्मिंग का इस्तेमाल करते हुए, थोड़ी लैंड का इस्तेमाल करते हुए भी फार्मर की जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाती है. देयर इज़ एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टनल फार्मिंग, जहाँ पे इसमें ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो क्रॉप है,
उसको मार्केट तक लेके जाना है। उसको जब मार्केट तक लेके जाना है, जब आप ऑफ सीजन क्रॉप की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो आपको उसको मार्केट में डेली बेसिस पे लेके जाना होता है। जब उसकी क्रॉप आपकी आई है, आउटपुट आया है उसका टनल फार्मिंग का, तो उसमें ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो जब ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो वो वाला सेगमेंट भी जो आपका देखते हैं ट्रॉली पे, रिक्शा पे और इस तरह की चीज़ों पे जो जिनकी एम्प्लॉयमेंट चल रही है, उस सेगमेंट को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है ज़्यादा। There are some external and intrinsic factors which are affecting the life in rural communities. उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। फिर मार्केट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्पेशली लेबर्स के लिए। फिर एग्रीकल्चरल आउटपुट, मार्केट एंड पॉलिसी। फिर इंट्रिंसिक फैक्टर में कौन से फैक्टर्स हैं? इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड मेंबर्स, हाउस होल्ड स्ट्रक्चर, फिर एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स, ये वो वाले फैक्टर्स हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन रूरल कम्युनिटी, एरेडिकेटिंग पॉवर्टी, सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी की चेंज का, स्ट्रक्चरल चेंज का रूरल कम्युनिटी पे, कि जो इस चेंज के साथ पॉवर्टी एरेडिकेट हो रही है, ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। एंड इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये दो चीज़ें आप देख लें तो बाकी फैक्टर्स इनके आगे कुछ भी नहीं है। कि टेक्नोलॉजी से पॉवर्टी एरेडिकेट हो रही है, उनकी जो इनकम लेवल है वो इन्हांस हो रहा है, और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन बेहतर हो रही है। इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, बिल्डिंग रिलायंस फॉर फार्मर, इंप्रूविंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, इंप्रूविंग preservation of crops, promoting energy access and efficiency, enabling economic diversification and transformation, productivity and competitiveness, promoting social inclusion। इसमें वो वाला सेगमेंट जो इंक्लूड नहीं होता, जो नेग्लेक्ट सेगमेंट है, तो वो भी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी की चेंज के साथ, तमाम सेगमेंट जो सोशल इंक्लूजन की हम बात करते हैं, वो भी सारे सेगमेंट इंक्लूड हो जाते हैं। फिर कॉन्फ्रंटिंग डिजीज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, फिर स्केलिंग एंड पर्सनलाइजिंग एजुकेशन, एजुकेशन में भी उसमें बेहतरी आती है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है, जो पॉलिसी डेवलप की जा रही है, पॉलिसीज़ डिवाइस होती हैं टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी की चेंज के लिए, स्ट्रक्चरल चेंज के लिए, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रूरल कम्युनिटी पे उसके बहुत ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, और इसकी अडेप्टिंग जो कैपेसिटी है रूरल कम्युनिटी की, उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंज के बहुत अच्छे और बेनिफिशियल इम्पैक्ट हैं हमारी रूरल कम्युनिटी पे भी, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ पे भी, हमारी फूड सिक्योरिटी पे भी, हमारी रूरल कम्युनिटी की जो न्यूट्रिशनल लेवल है उस पे भी, और इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रूरल डेवलपमेंट पे और ओवरऑल देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इसके बहुत ज़्यादा ज़ूद असरात मुरतब हो रहे हैं।